आइए हम अपनी बाइबलों को खोलेंगे। Turn the Bible to the book of Genesis, chapter 22. बाइबल में निकालेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 22वां अध्याय। And we are going to read from verse 7 onwards till verse 14. और हम 7वें आयत से 14वें आयत तक पढ़ेंगे। And Isaac spake unto Abraham his father and said, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Abraham said, My son, God will provide himself a lamb Amen. for a burnt offering. So they went both of them together. And they came to the place which God had told him of. And Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and bound Isaac his son, and laid him on the altar upon the wood. And Abraham stretched forth his hand, and took the knife to slay his son. And the angel of the Lord called unto him out of heaven, and said, Abraham, Abraham. And he said, Here am I. And he said, Lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest God, seeing thou hast not withheld thy son, thine only son, from me. And Abraham lifted up his eyes and looked, and behold, behind him a ram, caught in a thicket by his horns. Amen. And Abraham went and took the ram, and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh, as it is said to this day, In the mount of the Lord it shall be seen. इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो हैं, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ हैं? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, खुदा होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। और जब वे उस स्थान को जिसे खुदा ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा, और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख, मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा, और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू खुदा का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपनी सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। Thank you, Abba Heavenly Father, for thy word. धन्यवाद देते हैं अब्बा स्वर्गीय पिता आपके वचन के लिए। Now please come amongst us and bless us with the anointed word for this age. अब कृपया करके हमारे बीच में आइए और हमें आशीषित करिए उस अभिषिक्त वचन के साथ जो कि इस युग में आया है। Under your blood we bring us and our families. आपके लहू के नीचे हम अपने आप को, अपने परिवारों को लेके आते हैं। Keep us protected, Father. पिता हमें सुरक्षित रखें। In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। Amen. आमीन। You can be seated. आप बैठ सकते हैं। Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Blessed be the name of the Lord मुबारक हो खुदावंद का नाम, for him giving us another time and opportunity कि उन्होंने हमें एक और मौका और सौभाग्य दिया come in his presence कि हम उनकी मौजूदगी में आने पाए। Amen. and to hear his word. और उनके वचन को सुन पाए। Amen. आमीन। I know you are all very much familiar with this scripture मैं जानता हूं आप सब भली भांति परिचित हैं इस वचन के हिस्से से, and how God is opening things for us. और कैसे खुदावन चीजों को हमारे लिए खोल रहे हैं। These secret passages ये गुप्त सुरंगें where the believer can go into
जिसके अंदर जो एक विश्वासी जा सकता है and receive what he wants. और उनको प्राप्त कर सकता है जो उसकी जरूरत है। Blessed be the name of the Lord. मुबारक हो खुदावंद का नाम। So I really thank God, and I am going to read a few quotes from Speak to This Mountain. मैं खुदा का वास्तविकता में धन्यवाद देता हूं और मैं कुछ कोट्स पढ़ूंगा उस संदेश से, इस पहाड़ से बोल दे। You have been hearing what I shared on Sunday, आप सुनते आए हैं उसको जो मैंने संडे को रखा था। आमेन। and now in this he says, और इसमें वो ये कहते हैं, I believe that the Church of the Living God is moving into a sphere now. मैं विश्वास करता हूं कि जीवते खुदा की कलीसिया एक ऐसे गोले में जा रही है That's going to shake the whole world. जो कि पूरी दुनिया को हिला देगी। He's talking about Sister Hattie's house. वो बात कर रहे हैं बहन हेटी के घर के विषय में। That's the first time it's been since the days of Jesus of Nazareth to a human being. ये पहली दफा हुआ यीशु नासरी के दिनों से अब तक के एक इंसान के ऊपर। Ask anything that you will, जो कुछ तुम चाहो मांगो and it shall be given unto you. और ये तुम्हें दे दिया जाएगा। Anything you desire. कोई भी चीज जिसकी तुम्हें इच्छा हो। आमीन। He said, from the time of Lord Jesus, उन्होंने कहा यीशु मसीह के समय से, प्रभु यीशु के समय से, this is the first time it happened on a human being. ये पहली दफा था जब ये बात एक इंसान पे घटी। And the background of this is, और इसकी भूमिका ये है, you know it, but I'm going to read it for you. आप जानते हैं इसे, पर मैं इसके लिए आपको इसको पढ़ूंगा आपके लिए। He said, I was in Sister Hattie's house after the creation of these squirrels. उन्होंने बोला कि मैं बहन हेटी घर में था उन गिलहरियों के सृजने के बाद। And I was talking about this creation of squirrels in the house of Sister Hattie Wright. और मैं बात कर रहा था इन गिलहरियों की सृष्टि के विषय में बहन हेटी राइट के घर में। And said, I was asking the people, और उन्होंने कहा कि मैं लोगों से पूछ रहा था, can you find a squirrel on such and such place? क्या आपको एक ऐसी गिलहरी किसी ऐसे खास स्थान पे मिल सकती है? They said no. उन्होंने बोला नहीं। Then I am reading in para 59. फिर मैं 59 अनुच्छेद में पढ़ रहा हूं। And I said the only thing I could think it to be, और मैंने कहा कि मैं केवल एक चीज जो सोच सकता हूं इसको की ये है, would be this. वो ये होगा, when God was trying to tell Abraham जब खुदावन कोशिश कर रहे थे कि अब्राहम को बताएं how he was going to bless him. कि कैसे अब उसको वो आशीष देंगे। आमीन। I'm going to read this line again. मैं इस पंक्ति को फिर से पढ़ूंगा। This is the beauty of the message. You read it 1,000 times. There's something new every time. आमीन। ये खूबसूरती है संदेश की कि आप संदेश को 1000 दफा पढ़ें, उसमें कुछ नया निकल के आता है। He's trying to explain in Sister Hattie's house how the squirrels came. वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं बहन हेटी घर में कि कैसे गिलहरी आई। He said, the only thing I could think it to be उन्होंने बोला ये केवल एक चीज जो मैं सोचता हूं वो होगी, would be this. वो ये थी, When God was trying to tell Abraham जब खुदावन अब्राहम को बताना चाह रहे थे how he was going to bless him, कि किस प्रकार से वो उसे बरकत देंगे, how he was going to bless him. किस प्रकार वो उसको बरकत देंगे। His next line, उनकी अगली पंक्ति, he's telling Abraham, वो अब्राहम को बता रहे हैं, I'm repeating it the third time, मैं तीसरी दफा इसको दोहरा रहा हूं, how कैसे he is going to bless him. वो उसे बरकत देंगे। His next line, उनकी अगली पंक्ति, I said, if this be my new ministry, उन्होंने बोला कि अगर ये मेरी नई सेवकाई है that's coming in, जो अब आ रही है आगे बढ़ के, something greater, कुछ अधिक बढ़ के महान, that he will finally confirm it in that little building. जिसको वो आखिरकार पुष्टिकृत करेंगे उस छोटी बिल्डिंग में। His next line, उनकी अगली पंक्ति, I said, if it be that like Abraham, मैंने ये कहा अगर ये ऐसा था अब्राहम के समान, my third pole, my new ministry is like Abraham, मेरा तीसरा खिंचाव, मेरी नई सेवकाई अब्राहम के समान है। that means something is happening here in Genesis 22, आमेन। which is directly connected with this new ministry. इसका मतलब कुछ है जो घट रहा है
इस उत्पत्ति 22 में, जो कि सीधे सीधे जुड़ा हुआ है मेरी नई सेवकाई के साथ and the blessings of Abraham. और अब्राहम की आशीष के साथ। Listen now. अब सुनिए What is happening in Genesis 22? जो कुछ हो रहा है उत्पत्ति 22 में, How he is going to bless Abraham. कि वो कैसे अब्राहम को बरकत देंगे। Because once the ram came क्योंकि एक दफा मेढ़ा आ गया and the test was over, और जो परीक्षा थी वो समाप्त हुई, then God says in verse 17, तो फिर खुदावन कहते हैं 17वीं आयत में, a little before that he said, I have sworn, थोड़े समय उससे पहले बोलते हैं कि मैंने शपथ खाई, and in verse 17, और 17वीं आयत में that in blessing I will bless thee, कि निश्चय आशीष में मैं तुझे आशीष दूंगा and in multiplying I'll multiply thy seed, और बढ़ाने में मैं तेरे वंश को बढ़ा दूंगा as the stars of the heaven, आकाश के तारागण के and समान as the sand which is upon the seashore, और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान, and thy seed और तेरा वंश shall possess the gate of his enemies. अपने दुश्मन के फाटकों पे कब्जा करेगा। This is the blessings of a seven-legged man ending with HAM. आमीन। ये है बरकत एक 7 अक्षरीय मनुष्य की जिसका नाम HAM से अंत कर रहा है। Listen now. सुनिए अब, He's showing Abraham something. वो अब्राहम को कुछ दिखा रहे हैं। I'll repeat again. मैं फिर से दोहराऊंगा। The purpose, you know it very well, was not to kill Isaac. आमीन। आप भली बात ही जानते हैं जो उद्देश्य था वो ये नहीं था कि इसहाक को मारा जाए, but to show God's provision of his sacrifice. आमीन। पर दिखाया जाए कि कैसे खुदावंद का प्रयोजन था अपनी कुर्बानी का। And that too also he'll explain it when we have heard it so many times. और वो भी वो उसे समझाएंगे, हमने इसको कई दफा सुना भी है। And after showing and giving Abraham that experience, which I can now say of the spoken word, और अब्राहम को दिखाने के बाद और देने के बाद उस अनुभव का के जिसको अब मैं बोलूंगा बोले वचन का अनुभव, that seven-legged man ending with HAM received a first-hand experience of what the spoken word does. आमीन। उस 7 अक्षरीय वाले मनुष्य के नाम वाले मनुष्य को पहली दफा ये अनुभव मिला कि इस जो बोला हुआ वचन है ये करता क्या है। And that's what he's quoting it for himself. और यही चीज वो कोट कर रहे हैं भाई ब्रैनम अपने लिए। Like he gave ram to Abraham, जैसे उसने मेढ़ा दिया था अब्राहम को, he gave me squirrels. उसने मुझे गिलहरियां दी हैं। आमीन। Is that right? क्या बात ठीक है? That experience didn't come to the seed. वो वाला अनुभव जो है वो बीज के पास नहीं आया, That came to the prophet. वो नबी के पास आया। He was the first one to experience that. वो पहले शख्स थे उसका अनुभव लेने के लिए। But when that experience came, it came with a promise. पर जब वो आमीन, जब वो अनुभव आया तो वो एक वायदे के साथ आया। The minute the seven-legged man experienced the power of the spoken word, जिस क्षण इस 7 अक्षरीय वाले नाम के मनुष्य ने इस बोले वचन की सामर्थ का अनुभव किया, the next line says, अगली पंक्ति ये कहती है, blessing I will bless thee, आशीष में मैं तुझे आशीष दूंगा and in multiplying I'll multiply thee, और बढ़ाने में मैं तेरे को बढ़ा दूंगा, and thy seed shall, future, और तेरा वंश अधिकारी होगा भविष्य में। now connect that with Danny Henry's prophecy. आमीन। अब इसे जोड़िए डैनी हेनरी की नबूवत के साथ। This in itself is that ये अपने में स्वयं वो है will bring that tremendous victory जो लेके आएगी उस जबरदस्त जीत को in love divine. दिव्य प्रेम में। That experience on the mountain वो अनुभव जो पहाड़ पे था of that spoken word, उस बोले वचन का, providing the ram, मेरे को मुहैया करने का, providing the squirrels, गिलहरियों को पैदा करने का, providing the silver-tipped grizzly, सिल्वर टिप ग्रिजली भालू को पैदा करने providing का, the caribou, उस कैरिबू को देने का, came with a blessing. ये एक आशीष के साथ आया है। And that blessing is, और वो बरकत ये है, thy seed तेरा वंश shall. भविष्य में करेगा। Because God on that mountain when he was giving that promise was foreseeing something. क्योंकि खुदावन उस पहाड़ के ऊपर जब उस वायदे को दे रहे थे
कुछ भविष्य में देख रहे थे। He's seeing an enemy coming like a flood. वो एक दुश्मन को बाढ़ की नाई आते हुए देख रहे हैं, That promise on the mountain और वो वायदा पहाड़ के ऊपर will hold at that time वो असर लाएगा उस समय पे, when God will raise a standard against that enemy. आमीन। जब खुदावंद अपना झंडा खड़ा करेंगे उस दुश्मन के खिलाफ में। Let me tell you, if you are a seed of Abraham today, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अब्राहम का वंश हैं आज, you have a special privilege. आपके पास एक खास सौभाग्य है। Nobody will help you. कोई भी आपकी मदद नहीं करेगा। आमीन।